Dear students, today we will discuss about graphical adjustment of traverse. So that means what actually it means. When we do the compass traversing, फील्ड में हम लोग कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं एंड वी विल डू द ट्रैवर्सिंग वर्क. जब हम लेके आते हैं देन यू हैव टू प्लॉट इट ऑन ए ड्राइंग शीट. जब हम इन्हें ड्राइंग शीट में प्लॉट करते हैं देन वी रियलाइज कि जो हम लोग काम किया है वो प्लॉट करते वक्त यू विल गेट सम एरर एंड दैट एरर इज क्लोजिंग एरर. So whatever data we have obtained that is to be plotted on a drawing sheet, and whatever errors are coming in the form of a closing error that we have to adjust graphically, and that method is known as graphical adjustment method. So today we will discuss briefly about how you have conducted the traverse surveying, then how you will adjust the obtained data graphically. So before starting any traversing survey, the first and foremost step is reconnaissance. So as we have already discussed, reconnaissance surveys means preliminary investigations or primary investigations you are going to perform. So the area in which the surveying is to be performed will be observed primarily, and whatever be the points, let us say you are going to conduct a traversing for 5 points A, B, C, D, E. These things are located, and field sketch of all points, and for the starting point location sketch, these things will be prepared during the reconnaissance survey. Means you will get an approximate idea about the site and where the points are located. Then you have to decide upon the equipments, which equipments you are going to take into the field. In this case you need either tape, you need chain, you need angular instrument, that is compass, and the compass is to be fixed on a tripod which is having ball and socket arrangements, tripod with ball and socket arrangement. And for example you are using a prismatic compass, wooden pegs are required, if necessary arrows are required, and other ancillary materials. That all equipment that is to be taken to the field, that is to be decided. So after that you have to go to the field, and based on the reconnaissance survey you have decided there are some 5 points, let us say, for which you are going to conduct a closed traverse. So you have to mark all those 5 stations. They may be major stations, let us say in this case A, B, C, D, E. They are normally marked since we are considering them as the referral points, or let us say major control points. So we fix with the help of wooden pegs in the field. Initially we fix the wooden pegs on A, B, C, D, E, that we are going to do the marking of stations. Once the marking of stations have been done, then what is the next step? We have to go to the field, and then in the field with the help of prismatic compass you have to take the readings. But what is a traverse? Traverse is nothing but comprising of network of interconnecting lines. Traverse में हमें 2 तरह की data लेना पड़ता है. Measurement means one is linear measurement and another is angular measurement. That means you should know the length of each leg. Leg means line, means A, B, C, D, E. AB is one leg, BC is another leg, CD is another leg, DE is next leg, EA is another leg. So you should measure the lengths of all these lines, and you should measure the directions of all these lines. In this case direction means bearing. So from the bearing you can calculate angles. So in the measurements, linear measurements you can done with the help of chain and tape. For angular measurements again you have some field procedure. For taking the angle observations with the help of compass you should perform some temporary adjustments. So what is the physical meaning of temporary adjustment? So when we use any instrument यूज़ करने से पहले और इंस्ट्रूमेंट इशू होने के बाद बीच में आप उनको कुछ ऑपरेशंस, कुछ काम करना पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट में, ताकि दैट इंस्ट्रूमेंट यू कैन मेक इट रेडी टू यूज़. तो जैसा आपने इंस्ट्रूमेंट इशू होती है सर्विस स्टोर से, तो वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आप फील्ड पे जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर सकता है. तो इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली यूज़ करने से पहले जो स्टेजेस आप करते हैं, जो स्टेप्स आप करते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड टेम्पररी एडजस्टमेंट. जैसा सिंपल एग्जाम्पल नॉर्मल हम ये कहते हैं कि जैसे आपने कॉलेज आने हैं 9 बजे, तो आप 8:30 बजे घर से निकलेंगे. तो जैसे आप उठेंगे कॉलेज आएंगे, वो नहीं करते हैं. जब आपने उठे हैं तो वाट एवर थिंग्स आपको परफॉर्म करनी है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, वो करके फिर देन यू विल कम टू द इंस्टीट्यूट. तो आपने इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ और काम करने से बीच में जो काम करते हैं, that you are making yourself ready to go to the institute. Similarly you are making the instrument ready to take the readings. उस दौरान जो भी operations हम करते हैं, they are all called, whatever adjustments we perform, they are called temporary adjustments. In this case जब instrument आपने लिए कंपास बॉक्स में से कंपास को निकाला और कंपास को फिक्सिंग करेंगे. The first step is fixing the instrument
वेयर फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द ट्राइपॉड स्टैंड, जो 3 लेग स्टैंड होती है उनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को आप फिक्स कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेंटरिंग, क्योंकि जब आपने कंपास फिक्स किया, कंपास की सेंटर और जो वुडन पेग ये हैं, ये की सेंटर दोनों जो हैं दे शुड बी ऑन सेम वर्टिकल लाइन। तो प्लम्बा आप यूज़ करेंगे ना, तो राउंड स्टोन पेबल लेंगे और यहाँ से ड्रॉप करेंगे, इट शुड ड्रॉप एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द वुडन पेग, दैट इज कॉल्ड सेंटरिंग। तो या प्लम्बा आप यूज़ करते, प्लम्बा यूज़ करके आप सेंटरिंग करेंगे। वाइल डूइंग द सेंटरिंग इट मे बी रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द लेग्स, ट्राइपॉड लेग्स एडजस्ट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड सेंटरिंग। सेंटरिंग के बाद जो कंपास होती है उन्हें हम लेवलिंग करते हैं। तो ये लेवलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वो जो कंपास रखे हैं इट शुड बी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल रखनी है, थोड़ी सी ये झुक जाती है, तो यू शुड एडजस्ट इन सच ए वे एंड दैट सिंपल ऑपरेशन इज नोन एज लेवलिंग। डंपी लेवल वगैरह में जो लेवलिंग है दैट इज डिफरेंट है, बट हियर यू आर एडजस्टिंग द कंपास विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट सो दैट द compass should be parallel to the earth surface in which we are going to perform our practical. Then taking the readings, जो readings हम कंपास से लेते हैं, ए पॉइंट पे हम लोग रखा ए से बी देखते हैं, ए से ई देखते हैं, तो these are all the readings we will take, and these are all readings nothing but in this case these are all nothing but bearings. So this is what you are, how you are going to perform the कंपास ट्रैवर्सिंग इन द फील्ड। सो वाइल टेकिंग द रीडिंग्स आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पॉइंट्स की कौन सी टेबुलर फॉर्म में हमें रीडिंग भरनी है, सो दैट वी विल सी how that will be. Normally it will be like this. So the first column is of line, so the first column is of line. So here we are having 5 points A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. So A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. Then you should know the lengths of all these points with the help of tape or chain. You are measuring the length. Let us say the length is L1, L2, L3, L4, L5. So AB length कितनी है, L1 है, BC L2, CD L3, DE L4, EA L5. So these are the lengths of the given traverse. वो आपने चेन या टेप यूज करके मेजर करेंगे। देन यू हैव टू ऑब्जर्व द बेरिंग्स। इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखा, ए से बी की तरफ देखा तो बेरिंग मिल गया, और ए से ई की तरफ देखेंगे दूसरा बेरिंग मिलते हैं। लाइक दिस, ए से बी देखा आपने 4 बेरिंग मिल गया, देन ए से ई, ये ई है तो ये ई है। तो लाइक दिस ऑल द बेरिंग्स आपको कैलकुलेट, सॉरी ऑल द बेरिंग्स जो भी आपने फील्ड में लेनी है, मीन्स 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द लाइन्स ए बी बी सी सी डी डी ई ई ये आपको डालनी है। इसके बाद एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो वो बेरिंग्स के अंदर जो भी करेक्शंस है विद द हेल्प, जो रीडिंग्स देखने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है या नहीं है, तो नॉर्मली जहाँ भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब आपने रेक्टिफाई करेंगे, यू विल गेट द करेक्टेड बेरिंग्स, देन यू विल गेट द एंगल्स ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट करेंगे। रिमार्क्स के अंदर कौन सी पॉइंट में लोकल अट्रैक्शन है या कौन सी पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, दीज थिंग्स यू कैन राइट ऑन द रिमार्क्स। दैट मीन्स अब आपके पास हर लाइन की करेक्ट बेरिंग है और हर लाइन की आपका लेंथ आपको पता है, फिर भी आपको कोई ये नहीं है, बट यू आर नॉट श्योर कि वेदर यू कैन प्लॉट द ट्रैवर्स प्रॉपरली और नॉट। सो आफ्टर गेटिंग दिस डेटा you have to draw the traverse, you have to draw the traverse. So हम फील्ड में क्या किए हैं, you know here what I am writing, let us say हम एज्यूम कर दिया स्केल हम जो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हम लोग ये एज्यूम कर दिया कि जो भी स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, तो फील्ड में आप लोग 10 मीटर नापे हैं, द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेट अस से 10 मीटर्स, तो 10 मीटर आप जब ऑन पेपर बनाएंगे तो 10 सेंटीमीटर आप बनाएंगे, दैट्स व्हाट वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर स्केल। यानी तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर is equal to 100 centimeters, so you can write it as 1/100, that is representative factor। तो RF इनकी कितनी है, 1/100 है। अब हम जो नोटेशंस दे रहे हैं, जो भी पॉइंट्स हमें A B C D E कह रहे हैं, इफ़ वी राइट A1 B1 C1 D1 E1, तो ये इनकरेक्ट वाला है। हमें ये पता नहीं है कि जो फील्ड से हम लोग नाम दे रहे हैं A B C D E, इफ़ दे आर करेक्ट देन दैट इज ए बी सी डी। लेकिन प्लॉटिंग के वक्त हमें ये पता चल सकते हैं कि शायद ये पॉइंट्स गलत है, तो गलत वाला का नोटेशन क्या है, A1 B1 C1 D1 E1 हम लोग रखेंगे। देन क्लोजिंग एरर कुछ आता है तो इनका नोटेशन हम कह रहे हैं कि A1 है। एंड देयर इज ए टर्म, कभी पूछते हैं रिलेटिव क्लोजिंग एरर। रिलेटिव क्लोजिंग एरर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ क्लोजिंग एरर आपको मिली है, दैट इज अमाउंट ऑफ सी हम लिख रहे हैं क्लोजिंग एरर, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग एरर जितने भी आपको मिला दैट डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, उस ट्रैवर्स की पूरी पेरीमीटर क्या है वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो दैट गिव्स द रिलेटिव क्लोजिंग एरर। तो अब हम ये देखेंगे हाउ यू विल एडजस्ट दिस क्लोजिंग एरर बाय ग्राफिकल एडजस्टमेंट मेथड। लेट अस से आपका पॉइंट ये था, यहां दिस इज योर पॉइंट,
ए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हम ये एज्यूम करेंगे ये तो सही है हमारी। तो ये के बाद विद द हेल्प ऑफ बेरिंग ऑफ द लाइन बी ए बी, तो यू आर ड्रॉन ए लाइन, लेट अस से दिस इज योर बी पॉइंट। ये क्या है आपका बी पॉइंट, लेट अस एज्यूम। फिर फॉर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको पता था, बी आपने प्लॉट कर लिया। एंड ये कितनी लेंथ रखनी है, बिकॉज यू नो द लेंथ आल्सो, ये लेंथ कितनी है, ए बी लेंथ L1, ठीक। नाउ move from A to B, then we say, let us say this is your C point. What is the name of this point? C. And what is the length of this one? AB L1 है, BC कितनी है, L2. Then C से D, हम वैल्यूज नहीं लिया, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले रहे हैं, तो C से D, let us say this is your D point, C से D, with the help of forebearing of line CD you are drawing this one. And what is the length of CD? You know the length of CD is L3. Then we move from D to E. Let us say this is your E point, this is your E point, and what is the length DE? Let us say this is your L4. Now the question is, if your readings, both angular readings and linear measurements, means आपका length भी सही हो और एंगल्स भी, या जो आपने बेरिंग जो लिया वो दोनों सही होता है, तो फिर क्या होगा, ई से आप ज्वाइन करेंगे तो ई ए आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, जो लास्ट पॉइंट ए बी बी सी सी डी डी ई ए इनसे मिल जाती है। इफ़ ई से आपने ज्वाइन कर रहे हैं एंड ई से ये मिल गया, दैट मीन्स क्लोजिंग एरर कितनी है, 0 है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल देंगे बहुत बढ़िया है, ठीक है, हो गया, आपको कोई ग्राफिकल एडजस्टमेंट करने का जरूरत भी नहीं है। बट ये इन रियलिटी में ऐसा नहीं आता है, बिकॉज फॉर मेजरिंग द लेंथ यू आर यूजिंग लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, सिंपल चेन और टेप, एंड एंगुलर मेजरमेंट कंपास आप यूज कर रहे हैं, इट बाउंड टू बी सम एरर्स, दे मे क्रॉप अप इन लीनियर एंड दे मे क्रॉप अप इन एंगुलर। सो अगेन while plotting also there may be some error, so ये सब errors मिलते हुए जो final shape में आपको जो error दिखती है, and that error is basically closing error. So reality में basically क्या होता है, ये ऐसे आ गया तो it does not require any graphical adjustment, लेकिन ऐसा आता नहीं है, तो इसका मतलब है अब जो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी DE है, ठीक है, आफ्टर दिस इज योर E, एंड फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है यहां तक आके रह गया, तो ये आपने L4 था, ये आपने L5 मेजर किया। सो ये बेरिंग आपने पता था, जितना बेरिंग मिला वो यूज करते हुए और लेंथ नापने के बाद आपका पॉइंट यहां रह गया, एंड दिस इज योर A1, या नहीं तो A डैश कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन कॉल इट एज A1 A डैश, जो भी अदर में। इसका मतलब क्या है, तो आपका ट्रैवर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस वन, ये पार्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर क्लोजिंग एरर, दिस इज नथिंग बट योर क्लोजिंग एरर। So A dash, in this case we are calling it as A1 दे रहे, तो ठीक है, हम instead of A dash you can call it as A1, you can call it as A1. So A1 is your closing error, A1 is closing error. Now you have to adjust that closing error graphically. Hope you are getting. ए बी बी सी सी डी डी ई ए का बेरिंग्स और लेंथ यूज करते हुए मैंने ट्रैवर्स को प्लॉट किया, तो मेरा लास्ट पॉइंट जो है ये मैच नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस ए नेम A1. सो A1 हमारी क्लोजिंग एरर है, दिस इज नोन एज क्लोजिंग एरर, बिकॉज ट्रैवर्स के अंत में एरर आपको पता चल रहा है। हाउ इट इज टू बी एडजस्टेड, हमें तो ये तो पता है कि जो ड्राइंग शीट में सबसे पहले पॉइंट आपने कौन से लिया था, ये पॉइंट है, दैट मीन्स ए पॉइंट तो सही है, लेकिन ये जो है इतनी गलत हो गया A1, तो ये एरर हम हर जगह पे एडजस्ट करनी है। इतनी गलती A1 पे ये पे हुआ है, तो B में भी कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, C में भी कुछ गलती है, D में भी गलती है और E में भी गलती है।
सो इफ दिस इज द क्लोजिंग एरर, दिस एरर इज टू बी प्रोपोर्शनेटली, हमें उन्हें हर पॉइंट पे एडजस्ट करनी है। क्या करनी है? प्रोपोर्शनेटली इस एरर को हर पॉइंट पे एडजस्ट करनी है। इनके करने के लिए हमें क्या करना है? यू सिंपली एज्यूम कि एक आपका स्टील वायर है, ए बी बी सी सी डी डी ई ए, लेकिन दोनों जुड़ नहीं रहे, लेकिन पूरी लेंथ आपको पता है, तो आपको पहले ये एज्यूम कर लीजिए पूरा मैंने ऐसे इनको सीधा कर दिया हूँ। दैट मीन्स पेरीमीटर को मैंने एक लाइन पे बना दिया हूँ। दैट मीन्स ए बी बी सी सी डी डी ई ए पूरा फ्रेम जो था हमें उनको सीध में कर दिया। सो दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन हॉरिजॉन्टल लाइन। वो लाइन कितनी है? दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कैसे कर रही हैं। अब इन्हें एडजस्ट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या है? ये। और इसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सीम्स टू बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट लेट अस से एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है। इसमें क्या करना है? L1 लेंथ, L2 लेंथ, L3, L4 और L5 प्लाट करनी है। इसका मतलब ये आपका L1 लेंथ है, ये आपकी, ठीक है, लेट अस से दिस इज योर L1 and this is your L2, this is your L3, this is your L4, finally this is your L5. That means L1 मतलब ए बी है, लेकिन ये हमें पता चल गया क्लोजिंग एरर की वजह से ये जो बी हम लोग जो बनाया था वो सही नहीं था, ये गलत वाला बी है। दैट्स वाई हम इनको कहेंगे B1। और ये C सही नहीं था, इनको कहेंगे C1। ये D सही नहीं था, इनको कहेंगे D1। ये E सही नहीं था, इसलिए ये E1 है, ये A1 है। अब ये तो सही था। अब इसका लेंथ कितनी है? L1। और इनकी नाम क्या होगा यहाँ? B1। और ये लेंथ कितनी है? L2। तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा इसका? हाँ जी, इसका नाम होगा C1। सिमिलरली L3 लेंथ यहाँ आ गया, यहाँ नाम क्या होगा? D1। और ये नाम क्या होगा? E1। और ये क्या होगा? वापस A1। समझ में आ रहा है? तो यही L1, L2, L3, L4, L5 हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में एक स्ट्रेट लाइन बना दे, उसमें डाल दिया। नाउ ये जनरली एडजस्टमेंट करते वक्त हम लोग मिनी ड्राफ्ट यूज़ करना बेटर है। अब मिनी ड्राफ्ट यूज़ करेंगे और इनसे ये A1 मेजर करेंगे, क्लोजिंग एरर A1। समझ लीजिए हमें मिला है ये y सेंटीमीटर या y मिलीमीटर, जितने मिला उसका नाम हम दे दिया y। हो सकता है 1 मिलीमीटर मिला हो या 10 मिलीमीटर मिला हो या 12 मिलीमीटर मिला हो, ये इतना मिल गया आपका क्लोजिंग एरर। वो जितना भी अमाउंट है दैट यू हैव टू पुट इट ओवर हियर वर्टिकली। ये कितना है? दैट इज योर क्लोजिंग एरर y। दिस इज योर क्लोजिंग एरर y। नाउ यू जॉइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मीन्स ए पॉइंट से इसे हम लोग ज्वाइन कर लिया। सो दैट मीन्स, सो नाउ दिस क्लोजिंग एरर एट ए मीन्स ये जो A1 जो क्लोजिंग एरर हम इन्हें प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यू ज्वाइन, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट प्रोपोर्शनेटली। कैसे हैं? B1 पे एक वर्टिकल लाइन बना दिया, जैसे आपका मिनी ड्राफ्ट है, यहाँ आपने इन पे रखा था, इनकी पैरेलल में घुमाया, फिर यहाँ एक लाइन आपने बना दिया और इनकी पैरेलल में रखा, ये एक लाइन बनाया आपने, यहाँ पर आपने एक लाइन बनाया, यहाँ पर आपने लाइन बनाया। सो दिस इज योर क्लोजिंग एरर y एंड y इज नथिंग बट दिस वन A1। सो दिस इज योर क्लोजिंग एरर। सो व्हाट इज द क्लोजिंग एरर एट B? This will be, let us say you are representing it as a small b. So this is the error at B. Then corresponding error at C, you are calling it as small c, small d, small e. So these values are, if it is the closing error, so these are the corresponding errors at B, C, D, E. So this is error at A, that is closing error, enter at traverse, but it is the error at E, error at D, error at C, error at B. Now ये जो एरर्स हमें मिला है, क्लोजिंग एरर तो हमें मिल गया, दिस क्लोजिंग एरर के साथ जो एरर हमें मिला है ABCD या BCD, इन्हें हमें ग्राफिकली एडजस्ट करनी है ताकि आपका असली ट्रैवर्स अब बनेगा।
जो ग्राफिकली आपको एडजस्ट करनी है, ताकि दैट विल बी द एक्चुअल ट्रैवर्स, दैट विल बी द एक्चुअल ट्रैवर्स। सो तो अभी आपको इससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज एरर इन दिस, एरर क्या है, A1 is the closing error. So what is the correction? What is the correction? Let us say 50 मार्क्स लानी है या 50 सेंटीमीटर होना चाहिए था, आपका 51 सेंटीमीटर आ गया, तो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू कितना था, 50 था, लेकिन आपको मेजर करते वक्त 51 आ गया। अब तो करेक्शन कितना अप्लाई करेंगे, -1 अप्लाई कर रहे हैं, तो ताकि आपका जो वैल्यू है वापस 50 करे। मेरा ये कहना ये है कि इफ एरर इज पॉजिटिव, करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, एंड एरर इज नेगेटिव, करेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव है। कोई भी एक वैल्यू है, मैं ट्रू वैल्यू 50 है, अब मेजर करते हो 51 आ गया, तो एरर आपकी कितनी है, +1 है, करेक्शन क्या होगा, -1 करेंगे ताकि 50 हो जाएगा। आपका वैल्यू आया 49, लेकिन आपको आना चाहिए 50, तो आप क्या करेंगे, आपका एरर क्या है, -1 है, करेक्शन क्या है, +1 है, ताकि 49 से 50 कहा। सिमिलरली graphically speaking, what is your closing error, A1. So if A1 is closing error, so what is the correction, ulta A1A, that is the correction. That means A1 is the closing error, this is the direction of the closing error, so what is this one, this is the direction of the correction, this is the direction of the correction. Now मिनी ड्राफ्ट हो या तो आप यूज कर रहे हैं, तो मिनी ड्राफ्ट का स्केल का स्क्रू थोड़ा रिलीज करनी है, एंड इट शुड बी केप्ट ओवर हियर पैरेलल टू A1. सो मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल है, इट शुड बी पैरेलल टू A1 बिकॉज हियर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बट अब करेक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, यू नीड टू अप्लाई द करेक्शन इन दिस डायरेक्शन। यहां तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां अप्लाई हो गया, दिस इज योर A। अब B पे इन्हीं की पैरेलल में मिनी ड्राफ्टर रखेंगे और कितनी लेंथ आगे बढ़ानी है, बी पॉइंट पे पैरेलल टू A1 मिनी ड्राफ्टर रहेगा, यहां पर आएंगे और बी पे ये जो स्मॉल बी लेंथ मिला है, उसी स्मॉल बी लेंथ का हम आगे एक्सटेंड करेंगे, उसी स्मॉल बी लेंथ का हमें आगे एक्सटेंड करनी है। दैट मीन्स इनकी पैरेलल में बी का लेंथ कुछ आ गया, फॉर एग्जाम्पल इतना था। देन C1 भी मिनी ड्राफ्ट तो एक बार हम पैरेलल कर दिया, यहां पर रखा था, फिर अब लेके जाएंगे C पे, और इन्हीं की पैरेलल में ये भी आ रहे हैं, या C में और ज्यादा आएगा, B से एरर C में ज्यादा था, तो इन्हीं की पैरेलल में हम लोग C पे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आ गया, ये कितना है, दिस इज, सो दिस इज स्मॉल b वैल्यू है और ये स्मॉल c वैल्यू है, और D पे कितना होगा, स्मॉल d एरर, इट इज पैरेलल टू दिस वन, वही स्केल पे यहां लेके चले गया, और इन्हीं की पैरेलल में D में फॉर एग्जांपल एक बन गया एरर, सो एक पॉइंट आपको मिल गया, सो दिस इज योर D1। देन E पे भी इन्हीं की पे, ये सब एरर जो है पैरेलल टू ईच अदर, तो E में भी एक पॉइंट बन गया, दिस विल बी योर न्यू पॉइंट। सो this is how you will adjust the closing error. Since this is A1 is direction of the error, तो A1 ये is the direction of the correction. So A1 ये यहाँ तो आपका ओरिजिनल पॉइंट ये सही है, और B से इनकी पैरेलल में स्मॉल b वैल्यू आपने मूव कर रहे हैं, C में स्मॉल c वैल्यू, D में स्मॉल d वैल्यू, E में स्मॉल e वैल्यू। Now all these new points, now all these new points you call this as B, and this new point as C, and this new point as D, and this new point as E. So now you are getting the actual traverse after graphical adjustment. That means this is A, and A to B you have joined, this is B, then B to the new point C, and then C to a new point D, and then D to new point E, and then finally the starting point A. Finally the starting point A. That means now you got a traverse A, B, C, D, E, A. So earlier क्या था आपका, A, B1, C1, D1, E1, A1. So this is wrong and this is the right one. So the black color के साथ हम जो लिखे A, B, C, D, E, A. So this is the
actual traverse after graphical adjustments. So the procedure simply I am repeating for a minute. Hope you are getting the point. So once the traversing is done, you are having the data of all points, that is fore bearing, back bearing of all points. Then you are also having the lengths of all lines. So with the help of bearing and length, first you have to plot the traverse and give the name as A, B1, C1, D1, E1, वापस A1. A1 आपको मिल रहा है एंड दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एरर. A1 इज नोन एज क्लोजिंग एरर. सो इसीलिए A1 ये क्लोजिंग करेक्शन में अप्लाई करनी है, करेक्शन अप्लाई करनी है. सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, सिंपली यू आर प्लॉटिंग द perimeter on a straight line. That means AB, BC, CD, DE, EA. That means L1, L2, L3, L4, L5. फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 13 मीटर, 11 मीटर जो भी आया वो आपने प्लाट करेंगे. कैसे प्लाट करेंगे? विद हेल्प ऑफ ए स्केल 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर. फॉर एग्जाम्पल ये आपने प्लाट कर दिया. देन जो क्लोजिंग एरर आपको वैल्यू मिला है, लेट अस से दिस इज 10 mm या 11 mm, उसमें कोई स्केल नहीं है. जितनी वो अमाउंट आया वही अमाउंट आपने यहाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लाट करनी है. Then you have joined this point and this point you are getting. So ये closing error है at A, तो E पे proportionate error कितनी है, D पे कितनी है, C पे कितनी है, B पे कितनी है, आपको मिल जाएंगे. फिर आपको सिंपली यही करना है, मिनी ड्राफ्ट यूज करनी है और मिनी ड्राफ्ट का स्क्रू को थोड़ा रिलीज करनी है एंड मिनी ड्राफ्ट का स्केल को ऐसे घुमानी है एंड यू फिक्स द मिनी ड्राफ्ट स्केल इज पैरेलल टू द क्लोजिंग एरर. फिर आपको फिक्स करनी है. फिर वही पैरेललिटी में बी पे लेके आएंगे. बी पे कितनी एक्सटेंट आप इस डायरेक्शन में करेंगे, इस इतना जितना इतना है. फिर सिमिलरली सी में कितनी है, स्मॉल सी क्वांटिटी यहाँ जो मिला, डी में स्मॉल डी क्वांटिटी और ई में स्मॉल ई क्वांटिटी. देन यू विल गेट द न्यू पॉइंट्स. सो नाउ यू जॉइन ए बी सी डी ई, यू आर गेटिंग ए न्यू ट्रैवर्स विच हियर इट इज शोन इन द ब्लैक कलर, ए बी सी डी ई. दैट इज द ट्रैवर्स आफ्टर graphical adjustment. So this is how you have to do the graphical adjustment of traverse. Again, so कभी कभी ये पूछ सकते हैं रिलेटिव क्लोजिंग एरर कैसे आप निकालेंगे. तो ये जो क्लोजिंग एरर आपको जो मिला है, फॉर एग्जांपल 10 mm मिला हो या 20 mm मिला हो, दैट इज क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर. क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर विल गिव द रिलेटिव क्लोजिंग एरर. नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको मिला है 10 मिलीमीटर एज योर क्लोजिंग एरर. आपने नापा था ये गैप कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर है या 10 मिलीमीटर आ रहा है. So this is your 10 millimeter is amount of closing error. So what is the perimeter? For example आपने A B B C C D D E पूरा लेंथ नापा था, कंप्लीट लेंथ आपको पेरीमीटर फॉर एग्जांपल मिला है 50 मीटर, 50 मीटर. सो दैट मीन्स पेरीमीटर आपका कितनी है 50 मीटर से, लेकिन आप उसको 1000 से ये कर देंगे तो क्या होगा, मिलीमीटर से इतनी आपका बन रहा है. सो दैट मीन्स 0 0 आपको ये हो जाएंगे. सो 1/5000 is your relative closing error. 1/5000 is your relative closing error. So normally 1/600 तक allowed है. 1/600 तक relative closing error allowed है. तो 1/600 से तो 1/5000 बहुत छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू है 600 जो है, तो इसलिए ये ओके है. जब आपका क्लोजिंग एरर बहुत बढ़ जाती है और ये 1/600 नहीं है, 1/500 या 1/400 आ जाते हैं, तो कहेंगे यार ट्रैवर्स में तो आपका क्लोजिंग एरर बहुत है. तो दिस इज नोन एज नॉर्मली एक थंब रूल है, 1/600 को रिलेटिव क्लोजिंग एरर की प्रिसिशन लिमिट माना जाता है. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल एडजस्ट द क्लोजिंग एरर. होप यू गॉट द यू ऑब्जर्व द थिंग्स. जो ट्रैवर्स का न्यूमेरिकल आपने किए हैं उसी न्यूमेरिकल का आप ग्राफिकल एडजस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर लीजिए. यू विल गेट द पिक्चर क्लियर. थैंक यू.